Good morning, students. Today we are going to continue the chapter 7 coordinate geometry. Okay, and we will start the exercise 7.2. In this exercise, we use section formula. What is the section formula? Let us discuss on this formula. If a point or a line divides a line segment joining 2 points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 ratio m2, then the coordinate of the point of division given by section formula. Okay, so this is line segment joining 2 points x1 y1 and x2 y2, and suppose this is the point of division, and this point divide this line segment in the ratio m1 ratio m2, then the coordinate of this point P m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, this is x coordinate, and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, if the point of division is midpoint, if the point of division is midpoint, then the coordinate of the point of division is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. If the point bisect this line segment, then the coordinate of the point is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. If the coordinate of the point of division is given, if the coordinate of the point of division is given and we have to find the ratio, then we let the ratio be k is to 1. रेशियो क्या लेट करेंगे? k is to 1. Okay, now question number first of exercise 7.2 is now question number first, find the coordinate of the point which divide the line segment joining the points minus 1, 7 and 4, minus 3 in the ratio 2 ratio 3. Because this is a line segment, solution minus 1, 7 and 4, minus 3. This is a point of division, divide the line segment into the ratio 2 ratio 3. So we have to find the coordinate of point P. So therefore this is suppose x1, this is y1, this is x2, this is y2, this is m1, m2. So using section formula, section formula.
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, क्लियर। तो 2 इंटू 4 m1 x2 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 3 इंटू -1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 अपॉन में m1 प्लस m2, ओके। 2 4 जा 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 प्लस 3 इज 5, -6 प्लस 21 अपॉन 5, तो 8 माइनस 3 5, 5 अपॉन 5, 21 माइनस 6 इज 15, 15 अपॉन 5, the coordinate is 1, 3, 5 upon 5 is 1, 15 upon 5 is 3, तो coordinate of the point of division 1, 3, clear। Now question number 2, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ट्राइसेक्शन यानी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स, ओके। So this is a line segment, suppose this line segment is AB, okay, and coordinate of A is 4, -1 and coordinate of B is -2, -3, and these are the 2 points P and Q which trisect the line segment AB. Let the 2 points P and Q trisect the line segment AB. It means AP, PQ और BQ इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1:1:1। This is 1, this is 1 and this is 1। It means P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, 1 पार्ट इधर है 2 पार्ट्स इधर है, तो P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में, और Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में, क्योंकि Q के इस तरफ 2 पार्ट्स हैं, इस तरफ 1 पार्ट है, तो P divides the line segment in the ratio 1:2। तो coordinate of P is, देखो m1 x2 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 x1 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे m1 y2 1 को -3 से, प्लस m2 y1 2 को -1 से, अपॉन में m1 प्लस m2, ओके। -2 2 4 जा 8 अपॉन 3, -3 और -2 अपॉन 3, 8 में 2 लेस करेंगे 6, 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 is 2 और -5 अपॉन 3। This is the coordinate of P. Clear? Now coordinate, since point Q divides it in the ratio 2:1, so therefore coordinate of Q, तो m1, ये m1 है, ये m2 है, तो m1 x2 2 इंटू -2 प्लस m2 x1 1 इंटू 4 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 2 इंटू -3
प्लस m2y1 1 इंटू -1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 -7 अपॉन 3, तो 0 एंड -7 अपॉन 3. तो आंसर इज द पॉइंट्स 2, -5 अपॉन 3 एंड 0, -7 अपॉन 3. क्लियर? Now question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, line have been drawn with chalk powder at a distance 1 meter each. देखो ये चाक पाउडर से लाइन ड्रॉ की है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. हर लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन डाली गई है. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट a distance of 1 meter from each other along AD. AD के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 99 100. ओके, तो 100 जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, तो टोटल लेंथ एडी की कितनी हो गई? टोटल लेंथ ऑफ एडी इज 100 मीटर. ओके, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन. निहारिका एडी का 1/4 डिस्टेंस, 1/4 मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करें या 4 से डिवाइड करें, तो 100 का 1/4 हो गया 25 मीटर. तो एडी के अलोंग सेकंड लाइन पर वो 25 मीटर रन करती है और एक फ्लैग पोस्ट कर देती है. ये हो गया उसका ग्रीन फ्लैग. ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, देखो वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 2 मीटर हो गया, और ये एडी के अलोंग यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 25 मीटर, 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी. 1/4 डिस्टेंस का मतलब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, तो 25 मीटर डिस्टेंस चलेगी, तो इसके ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,25. ठीक है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन. प्रीत क्या करती है? 8th लाइन पर 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 100 का 1/5 कितना हो गया? 20. 100 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें या 5 से डिवाइड करें, तो ये हो गया इसका रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट 8,20. तो कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग 8,20. ठीक है, देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. ये बोथ द फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस बिटवीन both the flags, as you know that distance formula is under root x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square under root x1 minus x2 2 minus 8 का square plus 25 minus 20 का square. 2 minus 8 is minus 6 का square 36. 25 minus 20 is 5 का square 25. So 36 plus 25 is root 61. The distance between both the flags is root 61. Okay. Now, if the Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the both flags, where should she post her flag? अब एक रश्मि है, वो ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, तो वेयर बिल्कुल हाफ वे में इन दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड में. ओके, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग. तो लिखेंगे मिड पॉइंट फाइंड करें, मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द
line segment joining the both two flags तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस 8/2, 2 प्लस 8/2, 25 प्लस 20/2. तो 2 प्लस 8 is 10, 10/2 is 5, 25 plus 20 45/2, 22.5. ओके, तो ये फिफ्थ लाइन पर 20 AD के अलोंग 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर ये पोस्ट करेगी. तो वो फ्लैग कहाँ होगा? बिल्कुल इन दोनों लाइन सेगमेंट के बिटवीन हाफ वे पे होगा. ठीक है, तो ये हो गया 5,22.5 मीटर. ठीक है, तो सी पोस्ट हर फ्लैग on the fifth line and at a distance of 22.5 meter along AD. फिफ्थ लाइन पर और एडी के अलोंग 22.5 मीटर की डिस्टेंस पर वो अपना पोस्ट फ्लैग पोस्ट करेगी. तो वो किस में होगा? बिल्कुल दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड में होगा. ओके, now question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the point -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6. तो अब रेशियो फाइंड करना है. किस कंडीशन में फाइंड करना है? जब एक लाइन सेगमेंट को जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है -3,10, 6,-8 को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -1,6. ओके, ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है. तो लेट रेशियो बी K:1. रेशियो हमने लेट कर लिया K:1. ओके, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, so therefore coordinate of the point of division तो m1 x2 k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 x1 1 को -3 से अपॉन में m1 प्लस m2. ओके, फिर m1 y2 k को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 y1 1 को 10 से अपॉन में m1 प्लस m2. तो ये जो है 6k -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1. बट 6k -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,6. ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट यही तो है. पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? जब रेशियो k रेशियो 1 है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं? ये, और ये किसके इक्वल है? -1,6 के. तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो और y को y के इक्वल कर दो, k की वैल्यू फाइंड कर लो. तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6k -3 -1 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 आ जाएगा. 6k प्लस k माइनस के को शिफ्ट करो प्लस के, 3 को शिफ्ट करेंगे प्लस 3 -1. तो 7k इक्वल्स टू 2. सो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 7. तो k अपॉन 1 k रेशियो 1 इक्वल्स टू 2 रेशियो 7. तो रेशियो इज 2:7. दिस इज आवर आंसर. y को y के इक्वल करते तो भी k की वैल्यू 2:7 आती है. यहाँ x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल किया है तो भी रेशियो 2:7 है. क्लियर?
Now question number 5. Find the ratio in which the line segment joining the point -1, -5 and -4, 5 is divided by x axis. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. ओके, तो ये 1, -5 एंड ये लाइन सेगमेंट है और इसको ये डिवाइड कर रहा है, ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने लेट कर लिया k/1 में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो लेट रेशियो बी k/1. ओके, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करें. ओके, तो सो दिस इज m1, m1 x2, k को -4 से मल्टीप्लाई करें, प्लस m2 x1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अपॉन में k+1. फिर m1 y2, k को 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस m2 y1, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करें, अपॉन में k+1. ठीक है, तो ये जाएगा -4k + 1 अपॉन k+1 और 5k - 5 अपॉन k+1. क्लियर? अब सिंस दिस पॉइंट lies on the x एक्सिस, भाई x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस पे लाई करेगा. ये x एक्सिस ही तो है पूरा, x एक्सिस से पे लाई करेगा. तो x एक्सिस पे क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा. तो देयरफॉर इट्स y कोऑर्डिनेट शुड बी 0. ओके, तो देयरफॉर 5k - 5 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 0. शिफ्ट करो, 5k - 5 इक्वल्स टू 0. k+1 को शिफ्ट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो 5k इक्वल्स टू 5 को शिफ्ट करो तो k की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 5, 1. तो k/1 क्या जाएगा, 1/1 हो जाएगा. ठीक है, अब रेशियो तो हमारे पास आ गया 1/1. अब we have to find the coordinate of the point of division. Coordinate of point of division. तो इसमें प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ k, सॉरी k की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें इसमें, तो k की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है. तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और 5 × 1 - 5 अपॉन 1 + 1. तो -4 + 1 अपॉन 2 और 5 - 5 अपॉन 2. तो ये जाएगा -3 को अपॉन 2, 0. तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3 अपॉन 2, 0. Now question number 6 of this exercise. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Taken in order यानी it means हमें orderly इसको vertices को लेना है. Coordinate of A is 1, 2, B is 4, y, C is x, 6 and D is 3, 5. तो इस कंडीशन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन में आप देखिए, as we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, इसका मतलब O जो है, O पॉइंट है, वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD.
दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्म, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू, x1 प्लस x2 अपॉन टू, x1 इज x, x1 इज 1, x2 इज x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू, ओके, और 2 प्लस 6 अपॉन टू, y1 is 2, y2 is 6, तो y1 plus y2 upon 2। ऐसे ही 4 plus 3 upon 2, x1 is 4, x2 is 3 upon 2, y1 is y और y2 is 5, y plus 5 upon 2, ओके। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग करें, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करें, y को y के इक्वल करें, तो 1 प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन टू, 1 प्लस एक्स बाई टू को 4 प्लस 3 बाई टू के इक्वल करके 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आ गया, सो एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करें, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y 2 प्लस 6 8 हो गया, 8 इक्वल टू y प्लस 5, तो y प्लस 5 किसके इक्वल आ गया, 8 के, 5 को शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू तो 6 आ गई और y की वैल्यू 3, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। AB डायमीटर है सर्कल का, ये एक सर्कल है और AB is the diameter of the circle and O is the center. We have to find coordinate of A where center coordinate of the center is 2, minus 3 and coordinate of the point B is 1, 4, ठीक है। तो let coordinate of A is x, y, B x, y, okay। तो since center is the midpoint of a diameter of a circle, तो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, तो देयरफॉर x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2, y1 इज y, y2 इज 4, 4 अपॉन 2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, माइनस 3, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ साइड करें, x प्लस 1 अपॉन 2 को 2 के इक्वल करें, 2 को शिफ्ट करें, x प्लस 1, 2 2 जब 4 हो गया, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एंड y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3, y प्लस 4 इक्वल टू 2 3 जब माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3, माइनस 10, क्लियर। Now question number 8. If A and B are minus 2, minus 2 and 2, minus 4 respectively, find the coordinate of P such that AP equals to 3 upon 7 AB and P lies on the line segment AB. This is the line segment AB and coordinate of A is minus 2, minus 2 and B is 2, minus 4. P such that AP equals to 3 upon 7 AB. Since AB equals to AP plus BP or AB equals to minus BP minus AP
equals to BP, और AP is 3/7 AB. ओके, तो 7 LCM 7AB माइनस 3AB इक्वल्स टू BP. तो 7 में से 3 लेस करेंगे 4AB/7 इक्वल्स टू BP. तो देयरफॉर AP और BP का जो रेशियो होगा वो 3/7 AB रेशियो 4/7 AB. AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 रेशियो 4 आ गया. It means P divides the line segment. P divide the line segments in the ratio 3/4. 3/4 में डिवाइड कर रहे हैं. तो therefore coordinate of P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? M1 x2 3 into 2, M2 x1 4 into -2 plus 4 into -2 अपॉन में M1 plus M2. फिर M1 y2 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस M2 y1 4 को -2 से अपॉन में M1 plus M2. तो हो जाएगा 3 to the 6 और 4 to the 8 -8 अपॉन 7. 3 4 जा 12 -12, 4 2 जा 8 -8 अपॉन 7. तो -2/7 और -20/7. The coordinate of P is -2/7 and -20/7. Clear? Question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this point into 4 equal parts. 4 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 equal parts में डिवाइड करेंगे तो let 3 points P, Q and R divides it into the 4 parts, 4 equal parts. So P, Q and R. -2, 2,8. Let P, Q and R points divide the line segment AB into 4 equal parts. तो यानी कि therefore AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो BR, इन सबका रेशियो 1:1:1:1:1. ठीक है, देखो ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है और ये 1 पार्ट है. तो यानी कि P divides the line segment in the ratio 1:3, क्योंकि P के इस तरफ 1 पार्ट है और इस तरफ 3 पार्ट है. Q divides it in the ratio 2:2, यानी कि P is the midpoint, Q is the midpoint of AB and R divides it in the ratio 3:1. R के इस तरफ 3 पार्ट है और इस तरफ 1 पार्ट है, तो 3:1. अब देखो एक हम ये भी देख सकते हैं. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, कोऑर्डिनेट Q मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट. Q मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें. -2 + 2/2 और 2 + 8/2. x1 + x2/2, y1 + y2/2. -2 + 2 0, 0/2 and 2 rate 10, 10/2. तो 0/2 is 0, 10/2 is 5, 0,5.
अब P क्या हो गया, AQ का मिड पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5, ठीक है। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ, now P is the midpoint of AQ, so therefore coordinate of P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2, -1 -2/2 क्या हो गया 1, और 2 और प्लस 5 7/2, क्लियर। और नाउ R is the midpoint of BQ, so coordinate of R is 0 plus 2/2 and 5 plus 8/2. 2/2 is 1, 5 और 8 13, 13/2. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 0,5, -1, 7/2 और 1 and 1, 13/2, क्लियर। Now question number 10. Find the area of the rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1. Taken in order. Okay. This is rhombus. Okay. And the vertices of rhombus are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1. Taken in order. Order से हमें लेना है. तो as we know that area of rhombus 1/2 into D1 into D2. Diagonal D1 into diagonal D2 upon 2. Okay. तो यानी कि AC into BD 1/2 AC into BD. So what is AC? So using distance formula 3 minus -4 का square, 3 minus -1 का square, sorry, plus 0 minus 4 का square. This is AC. And BD 4 minus -2 का square, 4 minus -2 का square plus 5 minus -1 का square. क्लियर। तो 1/2 इंटू ये जाएगा 3 plus 1 का square प्लस 0 minus 4 minus 4 का square, 4 plus 2 का square, 5 plus 1 का square. ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 plus 2 हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 plus 1 हो जाएगा. क्लियर। 1/2 इंटू 3 plus 1 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 4 का स्क्वायर आल्सो 16, और 4 plus 2 6 का स्क्वायर 36, 5 plus 1 6, 6 का स्क्वायर 36. तो इसको लिख सकते हैं 2 into 16 और इसको लिख सकते हैं 2 into 36. 16 plus 16 को क्या लिख दिया, 2 into 16 लिख दिया. 36 plus 36 को क्या लिख दिया, 2 into 36. तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4 root 2, स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6 into root 2. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
और √2 into √2 is 2. 12 to the 24. 24 square unit. Thank you.